In Mokama, a man who was campaigning for the Jan Suraj candidate was shot dead in broad daylight, and which is why you had the entire Mahagathbandhan uniting to ask the government if they are now not only faceless and clueless but also rudderless. Again, that same question of Jungle Raj was asked to the government. What is it that you had the opposition saying about the manifesto release? Listen in, because one of the main things pointed out was, why did the Chief Minister not even speak? Most of the opposition called it a shoot and scoot, a 30-second manifesto release where it was left to Samrat Chaudhary to explain the finer points. 26 सेकंड के लिए आए थे नेता लोग, चले गए। फिर डिप्टी सीएम जो बीजेपी के हैं उन्होंने मैनिफेस्टो की फॉर्मेलिटी करी। इनका मैनिफेस्टो का मतलब है कि आप जो लिखा हुआ इसके अंदर वादे करते हैं पब्लिक के साथ में हम निभाएंगे। अब आप बताइए, उसको इन्होंने बिना कमिटमेंट के इन्होंने जारी कर दिया। ये परंपरा होती है जो चुनाव पहले की, खाली परंपरा निभाने के लिए निभाई गई है। इनका इन वादों से कोई कमिटमेंट नहीं है। इतना बड़ा धोखा जनता को देना चाहते हैं ये लोग। हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही ख़त्म भी होगी, यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। नकल तो कर ही रही, हर एक चीज़ का नकल कर दिया। 1 करोड़ नौकरियां रोजगार देंगे, हमसे पूछते हैं कि कहाँ से देंगे, ये कहाँ से देंगे, तो ये तो बताएं। Now, even on the law and order front, it was the ruling alliance which came in for plenty of flack, because for the murder of Dular Chand Yadav, the supporter of Jan Suraj candidate Piyush Priyadarshi, the blame for it is being placed at the door of JDU candidate from Mokama, Anand Singh. Now, you have to understand a little bit of the background of where this murder has taken place. An extremely contentious seat where both the RJD and the JDU have thrown in their lot with Bahubalis, both men who've had a criminal past. On the one hand, you've got Anand Singh being fielded from the JDU. On the other, the RJD has fielded Veena Devi, who is the wife of another local don, Suraj Bhan Singh. And in the midst of it, you had Piyush Priyadarshi, who was canvassing in the area, and Suraj Bhan Singh, and Dular Chand Yadav was earlier with the RJD, and now he was campaigning for the Jan Suraj. So in an extremely complicated and a political tinderbox situation, this murder has happened. Now, the important thing to note is that so far, even though the RJD is saying that this is the return of Jungle Raj, though they are saying that Dular Chand Yadav was shot dead, that he was killed simply because he was a Yadav, he's an OBC face, the police is saying that there is no confirmation of the fact that the cause of his death is because of bullet wounds. However, the fact is that even now you have got the big question being raised. Is this the return of Jungle Raj? Is the NDA too late in declaring their manifesto? And more importantly, what explained Nitish Kumar's silence even today? मोकामा टाल के इलाके में जो भी घटना हुई वो निश्चित रूप से चिंतनीय है, पीड़ाजनक है, और पुलिस जो भी यथोचित कार्रवाई होगा बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के होगा। अपराध जिसने भी किया है उसने गुनाह किया है और गुनाह करने वाले को कार्रवाई होगी। ये इस तरह की घटना चाहे किसी के भी द्वारा किया जाए, ये गलत है। कानून का राज है बिहार में, और गलत कोई भी करेगा तो कानून उसको सजा देगी। ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया, 8-10 गाड़ियां चूर कर दी गई। हमारे अत्री के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रचार गाड़ी को भी प्रचार के समय के बाद रोक लिया गया। नहीं, कोई लाइन ऑर्डर का कोई फेल्यूर नहीं है। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद मुझे कोई वोट होकुल मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे, तब भी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया।
उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ, हमने 40 गाड़ी आबू थे, उसमें पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। And that brings us to the big questions on which the buck stops here on the Bihar campaign trail. The manifesto war is now underway with both the Mahagathbandhan and the NDA manifesto out. But who will the mandate favor? And on the eve of elections, is the shadow of Jungle Raj back? Joining us on the debate, we have Kuntal Krishna, spokesperson of the BJP in Bihar, Saneesh Chaugankar, senior journalist, Amitabh Tiwari, founder of Vote Vibe and a political strategist, Manoj Kumar Betha, spokesperson of Jan Suraj, and Kanchana Yadav, spokesperson of the RJD. Kuntal Krishna, all the questions will be asked of you. Jungle Raj, that is what you describe the RJD rule as. But if in broad daylight now people are getting shot dead simply because they are campaigning for your rival political party, what will you call it? Padmaja, we never called any Raj a Jungle Raj. It was Honorable Patna High Court which described Lalu and Tejashwi's father Raj as Jungle Raj. It was not us. It was Honorable High Court of Patna. Looking at the situation at that time, Honorable High Court Patna described that administration as Jungle Raj. See what happened yesterday. I do not want to be a part of the politics over dead body. Police is taking care of everything. FIR has been registered, investigation has been started, and we have started getting the result of the investigation also. Post-mortem report has come and it is indicating about something. Since investigation is in process, I will not speak, I will not reveal. Jitan Ram Manjhi, he is saying that the RJD got Dular Chand Yadav killed. Yeah. He is directly blamed the RJD. Are you seriously saying that the RJD killed Dular Chand Yadav for supporting the Jan Suraj? Padmaja, anything can happen. Anything can happen because RJD, they are into utter desperation. They are into utter desperation. It is not only, you please don't see this one incident in isolation. What is happening round the corner in Bihar? You know what their supporters are saying? आने दो भैया को पावर में कट्टा सटा के उठा लेंगे. What is this? You have first, no sir, just a second. An ASI is found dead in Siwan. 2 men are shot dead in Ara. And then you have this happening in Mokama. Yeah. So in the last 24 hours itself, you have at least 3 crimes being reported. Padmaja, again, I am asking you, what do we call it? Padmaja, yeah. Padmaja, in Bihar, rule is there. Okay. Police is taking care of things. FIR has been registered. You know what used to happen in Jungle Raj? There was a IAS officer, Mr. Vishwas. His wife, Champa Vishwas, was being raped for 2 years and no FIR was registered because Laluji was chief minister and police was under influence from CM's house not to register any FIR because the culprit was very close to Laluji. This was the situation in Jungle Raj. In Bihar right now, land of law is there. FIR has been registered and police will do whatever it should do. Kanchana Yadav. No, कोई दबाव नहीं. Is that today 5 people have already been booked, including the JDU candidate. अब सोचिए अनंत सिंह तो खुद उनके ही कैंडिडेट है, उनके गठबंधन के. उनके खिलाफ 4 लोगों के खिलाफ FIR हो गया है. पहले देखिए सालों तक क्राइम चलता रहता था, कोई रोक टोक ही नहीं थी. ये नहीं है जंगल राज, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, but the law is taking its course. कंचना यादव. पद्मजा जी, कितना कॉन्फ्लिक्टिंग है ना कि एक तरफ दुनिया में पहले ऐसे नेता होंगे नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू का तमगा लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. पुलिस इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड और जंगल राज नहीं है, ये पटना हाई कोर्ट ने कहा था. इनके पास 20 साल से, मुझे लगता है 2005 में जो ये एक टेप जो रिकॉर्ड किए होंगे ना, कैसेट, उसी को चला देते. आज बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी 2025 में. अरे भाई, एक चलते चुनाव में एक
जो है कि व्यक्ति की हत्या हुई है, सिवान में एसआई की हत्या हो गई है। कैन यू बिलीव इट? सिवान में एसआई की हत्या हो गई है, वही उसी सिवान में जहां पर योगी आदित्यनाथ जी जाकर रघुनाथपुर में बोलते हैं क्या कि ये तो अपराधियों को टिकट दिए, मवालियों को टिकट दिए हैं। तो हम इनसे पूछ रहे हैं ना कि अगर सुशासन बाबू थे तो इतना अपराधी बाहर कैसे हैं? और आप ही ने तो जेल का रूल बदल करके उन्हें बाहर से निकाला था, टिकट दिया था, लड़ाया था और 100 राउंड गोलियां फायर की। मेरा एक क्वेश्चन है पद्मजा जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये रूल तय किया है कि 10 से ज्यादा एक कैंडिडेट के पास गाड़ियां नहीं होगी। तो इस कैंडिडेट अनंत सिंह के पास, जो एक बाहुबली अपराधी है जिसको ये लोग छोटा सरकार कहते हैं, 40 गाड़ी कैसे है? और उसके गाड़ी में जो है कि वो AK-47 और तमाम गन्स कैसे मिले बिना लाइसेंस? नहीं, पर कंचना जी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर दैट यहाँ पे कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। क्योंकि अगर आप अनंत सिंह की बुराइयां गिना रहे हैं, और गिनानी भी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ केस है, भाई सजा याफ्ता है, वो जेल से छूटे हुए हैं, लेकिन सूरजभान सिंह और फॉर दैट मैटर दुलाल चंद ऑल्सो has got cases against him. What has the police said? Police is saying that संदिग्ध हालत में उनको वहां पर पाया गया, उनके खिलाफ भी कई सारे केसेस रजिस्टर्ड थे। So this is not a good versus evil fight. कहीं यहाँ पे कोई राजनीतिक शतरंज तो नहीं खेला जा रहा है मैं एक जंगल राज का इंप्रेशन देने के लिए। आई डोंट नो अबाउट द कॉन्स्पिरेसी पद्मजा जी, लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है ना कि फिर दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप सुशासन बाबू हैं तो अपराधी बाहर कैसे हैं, चाहे वो जिस पार्टी में भी हो। अगर आप सुशासन बाबू हैं तो सारे अपराधी जेल में होने चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और सारे अपराधी अगर घूम रहे हैं, कोई एक अपराधी किसी और अपराधी का मर्डर कर रहा है, तो इसका मतलब आप सुशासन बाबू नहीं हैं। आप फिर आपने लॉ एंड ऑर्डर को नहीं सही से संभाला। कुंतल कृष्णा रिस्पॉन्ड, देन आई वांट टू ओपन दिस अप। कुंतल कृष्णा। या पद्मजा, कंचना जी, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा चूंकि आंखों पे आपने लालटेन का चश्मा लगा रखा है। देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाउ इन बिहार। आपके समय वाली हालत नहीं थी कि पूरी की पूरी बस ही गायब हो जाती थी। आपके समय वाली हालत नहीं है कि देयर वाज मैडम an IAS officer's wife was raped for 2 years and your police did not even registered an FIR। ये सच्चाई है। आपके यहाँ सीएम हाउस पेट्रोनाइज करता था क्राइम को। राइट नाउ देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन बिहार। एरिया पटना में मारे जा चुके, गोपाल खेमका के घर पे घुस के मारे, हॉस्पिटल में घुस के मारे, और आपको और क्या सबूत चाहिए ये महाजंगल राज को दिखाने के लिए? कंचना जी, अरे कंचना जी, जिन लोगों ने अरे कंचना जी, जिन लोगों ने ये बताइए जंगल राज तो एक टर्म है। कंचना जी ये भी बता दीजिए जो अपराधी थे क्या हुआ? अब एक सेकंड समीर जी, देखिए कंचना जी, आप ये भी बता देना, ये भी बता तो दुलार का क्या हुआ? हाँ जी, एक तो सर हिस्ट्री सबने देखी है। वी हैव stories of what happened in 1995, what happened before 2005, 2002, what Shahabuddin did. We have heard all of those stories. The question is about today. समीर जी, सवाल ये है क्योंकि दो इमेजेस हैं, एक तो दुलार चंद यादव की हत्या और दूसरी कि आज मैनिफेस्टो रिलीज में ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई नीतीश जी 30 सेकंड में क्यों निकल गए। कहने का मतलब ये है कि अब महागठबंधन ये कह रही है कि सीएम क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इसीलिए इस तरीके का क्राइम पूरे प्रदेश में फैल रहा है। क्या आपको लगता है कि दुलार चंद यादव तो सिर्फ एक सिम्टम है, डिजीज ज्यादा बड़ी है, या फिर लाइक आई सेड अर्लियर यहां राजनीतिक शतरंज खेला जा रहा है? देखिए, बिहार के अंदर हमेशा से बाहुबलियों का दबदबा रहा था और चुनाव के समय तो बाहुबलियों को किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण मिला है, बिहार इसका गवाह रहा है। और मुझे लगता है कि जब मोकामा में सूरजभान की पत्नी, जो सूरजभान खुद अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए रहे, उनकी पत्नी और अनंत सिंह चुनाव अगर लड़ेंगे तो ये तय है वहाँ फूलों की तो वर्षा होगी नहीं, दो अपराधी लड़ेंगे तो वहाँ बंदूक के गोला बारूद ही चलेगा। और मुझे लगता है कि प्रशासन को थोड़ा देखना चाहिए था कि दो बाहुबली अगर चुनाव मैदान में है तो किस तरीके से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि 1995 से लेकर लालू प्रसाद यादव का 96 से जो लालू प्रसाद यादव का जो 15 साल रहा था, उसके तुलना में अगर आज नीतीश कुमार का शासन देखें तो बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। उस समय जिस तरीके से क्राइम सीएम हाउस से कंट्रोल होता था या देखा जाता था, साधु यादव ने किस तरीके से उस समय सीएम हाउस से क्राइम को अंजाम देते थे लालू के साले, वो बिहार के लोगों को याद है। और मुझे लगता है कि एक लंबा समय लगा है बिहार को इससे बाहर निकलने में। हालांकि यह बात भी सही है कि बिहार अभी पूरी तरीके से सुशासन की स्थिति में नहीं आया है, लेकिन बहुत
बहुत बेहतर स्थिति के अंदर बिहार को फिलहाल मैं देख रहा हूं। अगर पिछले 10 से 15 साल की बात देखो, ठीक है छोटे क्राइम होते हैं और हर राज्य में होते हैं इस बात को, लेकिन जो संगठित अपराध और अपहरण उद्योग वसूली का जो बन गया था, जिसमें बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स और बड़े नेता शामिल थे, वह बिहार में अब नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार की खुद की छवि बहुत साफ सुथरी है। तो मुझे लगता है कि वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को उस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए। आज जब एनडीए का जो घोषणा पत्र आया, आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार के हाथ से राज्य निकलता जा रहा है? बार बार तो वो यही कहते हैं ना। तेजस्वी यादव ने क्या बोला कि वो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री हैं। आज वो मैनिफेस्टो रिलीज में रुक करके उन्होंने एक शब्द नहीं बोला मैनिफेस्टो के ऊपर। क्या ये एक साइन है कि स्टेट ऑन रिमोट कंट्रोल है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्टेट रिमोट कंट्रोल में है। नीतीश कुमार लगातार रिलीज कर रहे हैं, नीतीश कुमार पब्लिक से बात भी कर रहे हैं, कहीं रिमोट कंट्रोल नजर नहीं आता। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी इस समय और सबसे बड़े दल के रूप में लड़ रही है, केंद्र में सत्ता में है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कई विषयों पर नीतीश कुमार को इंस्ट्रक्ट करती होगी। लेकिन यह कहा जाए कि नीतीश कुमार पूरी कठपुतली बन चुके हैं, रिमोट कंट्रोल दिल्ली या बीजेपी के पास है, मुझे सही नहीं मानता। आज अगर यह कहा जाए कि भाई 30 सेकंड का जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है उसमें नीतीश कुमार ने क्यों नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि भाई ये महत्व का नहीं रहता कि 30 सेकंड का है। 60 महीने का किया, 5 साल की सरकार ने क्या किया, जनता वो काम देखती है और जनता नीतीश कुमार को वोट इस आधार पर देगी कि 5 साल साथ रैली कर रहे हैं। मैनिफेस्टो 30 सेकंड में रिलीज किया है। नीतीश जी एक दिन में 2-2 से लेकर के 7 रैली कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो अक्षम है, that he is incapable of running the state। पद्मजा जी, हमने तो ये भी देखा है कि मंच पे जो है वो जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सारे उनके नेता एकदम चौकन्ने से हो जाते हैं कि कहीं नीतीश कुमार जी कुछ गलत ना बोल जाए। इवन जब माला पहनाने को हो रहा था एक कैंडिडेट को, तो पीछे से उनके जो सुपर सीएम बन चुके हैं संजय झा जी, वो रोकने की कोशिश करते हैं। और वो रैलियों में कितना बोलते हैं, आप बता दीजिए ना। कोई उनकी ऐसी रैली जिसमें उन्होंने, हाँ बिहार के 20 साल उन्होंने क्या दिया और आगे 5 साल में वो क्या देंगे, वो कुछ बोले हो? समीर जी कह रहे काम कर रहे हैं ना। अरे ठीक है, थोड़े बहुत इधर 1-2 एपिसोड्स हो रहे हैं, समीर जी कह रहे हैं काम तो चल रहा है। पद्मजा जी, आपको नहीं लगता कि जो व्यक्ति 20 साल से सीएम हो, अगर उसका मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा हो तो उसको बहुत गर्व से आकर अपने 20 साल के कामों को गिना देना चाहिए था और फिर आने वाले 5 साल का विजन बता देना चाहिए था? समीर जी, आपको नहीं लगता? और ये क्या किसी भी मंच पर जब मुझे लगता है, अगर ये बात अगर कंचना जी पूछ रही है कि भाई नीतीश कुमार को बोलना था, तो जब इनका महागठबंधन का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ तो राहुल गांधी क्यों नहीं आए? राहुल गांधी आकर भी बोलते कि मैनिफेस्टो हमने भविष्य के बिहार के लिए बिना बिहार में हम ये देने वाले। राहुल गांधी खुद मैनिफेस्टो में आते नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये प्रश्न नहीं है कि नीतीश कुमार ने क्या नहीं बोला। मैनिफेस्टो में आप देखिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बाढ़ से मुक्त करने की वादा किया गया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना का किया है। केजी से लेकर पीजी तक की फ्री शिक्षा की बात की है। मतलब युवा वर्ग के लिए, किसान के लिए किसान सम्मान राशि 6,000 से बढ़ा के 10,000 करने का जिक्र किया है। हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो घोषणा अपने इसमें करवाई है, तो मुझे लगता है कि जनता उसे देखेगी। नीतीश कुमार ने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये बहुत मायने नहीं रखता है। पद्मजा जी 20 सेकेंड, मैं इस पे एक जवाब देना चाहती हूँ कि 5 साल में ये 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना देंगे, 20 साल में ये 6 करोड़ को नहीं बना पाए। मतलब फेयर आपको दिख रहा है कि 20 साल में 6 करोड़ महिलाओं को लखपति नहीं बना पाया, लेकिन 5 साल में 1 करोड़ को बना देंगे। ये कुछ तो इनका फॉर्मूला होगा ना। और नीतीश कुमार जी, मेरा तो सीधा, राहुल गांधी जी क्यों नहीं है आप ये पूछ रहे हैं ना। फिर राहुल गांधी जी इवन अपने स्टेट का, उनका जो इलेक्शन होता है वहाँ के भी मैनिफेस्टो में कहीं नहीं जाते। आपने कितने में देखा हुआ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को तो आज होना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर तो जेपी नड्डा जी को भेज दिए थे, खुद नहीं जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि नड्डा जी थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी प्रेसिडेंट थे। अरे और आपके मैनिफेस्टो रिलीज में खड़गे जी थे क्या? आपके मैनिफेस्टो रिलीज में कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर तेजस्वी हर घर 100 सरकारी नौकरी देंगे। नहीं, प्राइम मिनिस्टर जी, तेजस्वी जी हर घर से सरकारी नौकरी देंगे। हर घर से सरकारी नौकरी तेजस्वी देंगे। कैसे देंगे आप बता दीजिए। कभी एक सिंगल, लेट अस स्पीक प्लीज, लेट अस स्पीक। दैट्स व्हाई वो उसमें पार्टिसिपेट। कंचना जी एक जवाब दे दीजिए, हर घर से सरकारी नौकरी तेजस्वी कैसे देंगे? तेजस्वी ने कहा है ना हर घर से एक सरकारी नौकरी, कैसे देंगे आप बता दीजिए। हम हर घर से सरकारी नौकरी देंगे, हम मोदी जी थोड़ी ना है कि जो बस जुमला करे। हमने 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी दी, मात्र 17 महीने में। एक डिपार्टमेंट से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से, प्लस एक डिपार्टमेंट हमारे पास था जिससे हमने 5 लाख नौकरी दी।
हम 2.5 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देंगे। और ये सोचिए ना, जब हम 1.5 करोड़ 1,41,000 जीविका दीदियों को सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस का दर्जा दे रहे हैं, आप उनको क्या सरकारी नौकरी में कंसीडर करोगे या नहीं करोगे? 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदी, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस का दर्जा मिलेगा। आप कहाँ से देंगे? हम आपको रोड मैप भी दे देंगे, लेकिन जरा मोदी जी से पूछिएगा ना 2 करोड़ कहाँ से? अभी 1 करोड़ का बात कर रहे थे ना, 20 साल में कितने करोड़ दिए? क्यों आने वाले 5 साल में जो है 1 करोड़ नौकरी दे देंगे? तो एक तरफ क्रेडिबिलिटी है और एक तरफ जुम्मेदारी वाले लोग हैं। देखेंगे। Okay, Kanchana ji, although we have had this debate over and over about government jobs, but I will again repeat a very interesting data point, which is that 2.5 lakh crore jobs is what you are, 2.5 crores, pardon me, not 2.5 lakh crores. Yeah. 2.5 crore government jobs is what you have promised in Bihar, as opposed to 17,88,000 government jobs in Uttar Pradesh, 9 lakh government jobs in Tamil Nadu, 8 lakh government jobs in Andhra Pradesh, 8 lakh in Bihar, can I come 8 lakh in Rajasthan, and I did a rough back of the envelope calculation. Just a second. Do you know that currently all the government jobs in India together are less than 2.5 crores that you are promising in Bihar alone? But like you said, you are going to present a roadmap about it when you come into power, and you are going to bring a law. We will wait for that roadmap. I want to bring in Amitabh Tiwari now. Amitabh Tiwari, again going back to the issue of Dular Chand Yadav's murder. Now this is also a very interesting case where you have a Jitin Ram Manjhi saying that this is politically orchestrated by RJD. The caste calculations there are extremely interesting. You've got 2 Bahubali Bhumihars fighting from the JDU and the RJD. You have an EBC from Jan Suraj, and then you have an OBC, a Yadav, who is campaigning for the Jan Suraj candidate. Do you see some pattern emerging from this? Could there be any kind of conspiracy, or is this something that the government is hiding behind? No, I mean, if there is any conspiracy, then it is for the Bihar police to unearth. I mean, I will not be in a position to answer this. It's an unfortunate incident anyways. I think this incident has fired up the debate on Jungle Raj. So if you see one of the biggest structural bottleneck of the Mahagathbandhan or the RJD is the allegation of Jungle Raj during its 1990 to 2005 tenure. Before the SIR in Bihar, there were a spate of incidents wherein a businessman and a criminal, I think, was murdered in a hospital, and there was a lot of debate around law and order at that point of time. So whenever incidents like these happen, the Mahagathbandhan or the RJD feels that it is a moment that they should try to neutralize the allegations made by the NDA on the Jungle Raj. That's why we see politics and accusations and counter allegations on this issue, that whether the Nitish government has been able to really improve the law and order or not, because RJD sees this as an opportunity. On the caste aspect which you mentioned, I think this can have an impact on nearby constituencies, because now it could translate into one caste or community versus the other in Bihar. Correct? Because as you mentioned, 2 Bhumihar or strongmen from Bihar community, which is the upper caste, are contesting. An EBC from Jan Suraj is contesting, and the person who has unfortunately died belongs to the Yadav Samaj or community. So this has the potential of snowballing into a major caste versus caste battle in the nearby constituencies. And even if this is not solved very early, then it also could snowball into a larger forward versus backward narrative in the entire state of Bihar. So I think both the alliances, I mean, it is unfortunate, but would try to milk it politically as well. Answer that, Kuntal Krishna. This is not just about the image of Jungle Raj. This could seriously turn the election as well, in the manner that Amitabh Tiwari described. Padmaja, first I would like to go back to the manifesto. I was asking for the time which you did not give to me. आज हमने जो संकल्प पत्र जारी किया है ना, this is in continuation with the work which we have been doing for last 2 decades. When we talk about making 1 crore of Lakhpati Didis,
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो जीविका दीदियों का समूह है ना, दिस इज अबाउट 1.40 करोड़ एंड यू नो द मार्केट कैपिटलाइजेशन विच दे डिड, डोमेस्टिक मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट इज अराउंड 50 लाख करोड़। 50,000 करोड़ का मार्केट उन लोगों ने कैपिटलाइज किया हुआ है, जीविका दीदी ने 50,000 करोड़ का मार्केट। इसलिए हम कह रहे हैं कि वी विल बी एबल टू मेक 2 लाख लखपति दीदीज इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का, और हमने जो आज संकल्प पत्र जारी किया है वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड के बेस पे है, हमारे विजन के साथ है। उस टाइप से नहीं है कि चांद ला देंगे तारे ला देंगे। जब आपको मेयर प्रोमिसेस ही करने हैं तो फिर तो आप कुछ भी कह दीजिए। मुख्यमंत्री जी सरकारी नौकरियां 3.25 करोड़ 2 करोड़ 75 लाख कहां से आएंगे? ट्रैक रिकॉर्ड डेप्यूटी सीएम को नहीं सुनाना चाहिए था, सीएम साहब को सुनाना चाहिए था। ट्रैक रिकॉर्ड ये पूरा बखान सीएम साहब को करना चाहिए। क्यों मैडम, क्यों पद्मजा जी? आप नहीं पद्मजा जी, क्यों? व्हाई नॉट? हु विल डिसाइड? We are very much part of the government. क्योंकि वो मुखिया No. We are very much part of the government. पद्मजा ये साहब उनके कारण ही तो सारा हो रहा है, उनके कारण ही तो सारा हो रहा है। He was there for that press conference ना, He was there for that press conference ना। We are very much united. हम महागठबंधन की तरह नहीं है कि तेजस्वी का प्राण पत्र। Conference for the 26 second only. The person who ruled Bihar 20 years. आपके यहाँ तो कुछ नहीं था। Rahul Gandhi has to be find out. Where is Rahul Gandhi is? Rahul Gandhi, he is not. आपके यहाँ तो तस्वीर ढूंढनी पड़ेगी। Minister of Bihar, but Nitish Kumar was. Hello, can you hear me? Okay, Manoj Betha. Sorry, you joined us a little late. There was a problem with your audio. Yes. Go on. Now it's okay. But now you are under the spotlight. Manoj Betha. Yeah. Is this a conspiracy? What's happening? Yeah, this is conspiracy because we are just raising the questions on Bihar government and the political system over here that last 35 years we have given tickets to the criminals and Bahubalis. And that's what is happening right now also. Despite a lot of problems happening in Bihar, problem of migrations, they are not thinking about it. Problem of education system is corrupted, we are not thinking about it. The problem of the entire health system is corrupted, we are not talking about it. When Jan Suraj started talking about these kind of problems that is happening in Bihar, Bihar is suffering like that one. Because when we go out of Bihar, we are get insulted. But which state Mr. Manoj is talking about? Just a minute, you got ample time. Give me time to explain it. Because 20 years we have given ample time. बैठा साहब किस स्टेट की बात कर रहे हैं आप? 20 years we have given बैठा साहब which state you are talking about? Still, Bihar coming the last. 20 साल पहले के बिहार की बात कर रहे हैं? 20 years we are you talking about Bihar which was there in 1995? Now what 2000? किस स्टेट, किस जगह की बात कर रहे हैं आप? Got the allegations that he has killed the supporter of Jan Suraj. Why you are doing all those things? Why you giving the tickets to the criminals? And he has a lot of criminal records. He has a lot of allegations on it, and you are given ticket to them. And what kind of law and order you are talking आपने about? मैनिफेस्टो अपना रिलीज कर दिया है? No, don't talk about law and order. आपने मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है? 20 years back. That's why we have taken NDA back, so that we wanted law and order situation should be controlled. आपने मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है अपना? Law and situation is not controlled in Bihar. You are just speaking about the things. It's in 1990 when you are talking about Jangal Raj. In 1990, Bihar was the last in the list of all the states. In 2025, Bihar is standing in the same positions. What progress you have done? Okay, Mr. Betha, just a second, because I want to play out. You know, the way this entire last 24 hours have been very complicated politically. The first allegation was that there was stone pelting between two sides, the cavalcade of Anand Singh and that of Piyush Priyadarshi, the Jan Suraj and the JDU candidates. Then suddenly RJD started saying that he's been shot dead, Dular Chand Yadav. Now here is what the doctors are saying. This is very, very interesting because there is conspiracy theories about what really is happening in Bihar. Is this being done deliberately to create a narrative? Is there more to this than meets the eye? I want to quickly play this out for you. हमारे उपाधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया, डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह है। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दिए हैं। तो रिपोर्ट अब लिख दिए हैं, जो
संबंधित थाना जो है रिसीव करके अपना ले तो कहा जाता है कि पहले एक्सरे करवाया गया उसके बाद कुछ जी जी, उनको कई जगह चोट था और तो नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो वो ग्रामीण इस पर कह रहा है कि पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पर, ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल जॉइंट पे। शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हाँ, लेसरेटेड वुंड मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। गोली एक ही लगी है। हाँ, गोली एक। Okay, very interesting turn of events. I'm completely out of time, so I'll have to thank all gentlemen and Kanchana Yadav. But now the doctor is saying that the murder, which has become the fulcrum of the political churning in Bihar right now, the cause of death is not a bullet. He got a bullet injury, but it was in his ankle. But that is not what killed this Jan Suraj supporter. Game of Thrones is still on, and it's only getting more heated in Bihar. Thanks very much for joining us.